हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी रैंकर्स। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, दोज हु आर एमिंग टू क्लियर द उत्तर प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज, and I'm going to discuss a very important topic today, that is for the purpose of your mains examination. It is a very important paper, that's the fourth paper, that's the most important paper in the law, that is a land laws. And land laws का जो एक topic है, एक subject है, that is in उत्तर प्रदेश जमींदारी abolition and land reform act. आज इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि what was the reason of the abolition of zamindari system and the new act was passed, and what are the aims and objective of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reform Act. So as we all know, zamindari system in India was the outcome of the British rule, and you know that Lord Canning was in fact the mind who created the landlords. So the British conquerors created the zamindari system for their own expediency and the administrative convenience, right? So this is basically, the zamindar was in fact a convenient social reactionary base for establishing a foreign rule over the peasantry in India. So because of these zamindari system, this zamindari system has been criticized by the large number of people, and it was in contradiction with our ideal principles and the ideology. So because of this zamindari system, there was growing distress among the people and among the peasantries in India. So because this zamindars were sucking the land revenue from our farmers, from our peasants. So this distress ultimately gave rise to the movement which we called it as a Kisan movement or the Ikka movement. Because of this, like the peasantry came forward, and there was a Kisan movement or the Ikka movement. And this Kisan और Ikka movement से finally क्या हुआ, एक अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 में पास किया गया और आगरा टेनेंसी एक्ट 1926 में पास किया गया. अवध अमेंडमेंट एक्ट, अवध रेंट अमेंडमेंट एक्ट 1921 and the Agra Tenancy Act 1926 were passed for improving the relation between the landlords and the tenants. Landlords और tenants के बीच में रिश्ते को सुधारने के लिए दो important कानून पास हुआ. पहला अवध, the first one is an Awadh Rent Amendment Act 1921, and the next is Agra Tenancy Act. Agra Tenancy Act 1926. बेसिकली ये दोनों जो एक्ट पास हुआ था, द पर्पज ऑफ इंप्रूविंग द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड एंड द टेनेंट. दीज एक्ट वर पास टू इंप्रूव द रिलेशन बिटवीन द लैंडलॉर्ड्स एंड द टेनेंट, बट दीज एक्ट्स वर इनसफिशिएंट. ये एक्ट जो थे इनसफिशिएंट थे एंड कुड नॉट चेक द आर्बिट्रेरीनेस ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. जो भी इजेक्टमेंट था या रैक रेंटिंग था, वो अभी भी जमींदार्स के हाथ में ही था, और जिसकी वजह से टेनेंट्स को बहुत सफर करना पड़ता था. The need of abolition of zamindari system was failed to improve the present condition of the peasantry. ये माना गया कि भाई जो हमारे अभी भी जो peasants हैं, उनकी conditions को हमें improve करने के लिए ये जरूरी है कि हमें जमींदारी सिस्टम को ही abolish करना पड़ेगा. 1935 में जब इंडियन नेशनल कांग्रेस अपने लखनऊ सेशन में ये डिसाइड किया कि प्रिंसिपल, उन्होंने टास्क लिया कि वी हैव टू इन एनी कॉस्ट वी हैव टू रिमूव दिस जमींदारी सिस्टम, सो और या वी हैव टू रिवाइज द टेनेंसी लॉ. सो दे टुक द प्लेस दैट वी विल रिवाइज द टेनेंसी लॉ. उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड इन 1939. एक उसके बाद फिर इन्होंने उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट पास किया. उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट वाज पास्ड, एंड ये जो एक्ट था 1939 में पास किया गया. ये जो एक्ट था, इसमें दिस एक्ट गिव द मोर सिक्योरिटी टू द टेनेंट्स एंड ऑल्सो कर्टेल द राइट्स ऑफ द जमींदार. 1939 में उत्तर प्रदेश टेनेंसी एक्ट पास हुआ, जिसने कि ज्यादा सिक्योरिटी दिया टेनेंट्स को, और उसने जो है जमींदार के राइट को कर्टेल किया. Just after that, in post World War II, the general election were held, और उत्तर प्रदेश और कांग्रेस मिनिस्ट्री was again formed in the UP. Post World War जनरल इलेक्शन हुआ, यूपी में फिर से कांग्रेस की सरकार आई, and they have taken a task that towards the abolition of जमींदारी. एक रेजोल्यूशन लिया उन्होंने कि उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में कि हम एक कमेटी बनाएंगे और उस कमेटी के तहत हम इस एक्ट को एबॉलिश करेंगे.
और हम जमींदारी सिस्टम एबॉलिश करेंगे एंड दे टुक द टास्क ऑफ रिमूविंग दिस उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन कमिटी फॉर्म किया। उस कमिटी में जो चेयरमैन थे वो पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे और उसके जो वाइस चेयरमैन थे वो हुकुम सिंह थे। उन्होंने कुछ कंसिडरेशन किया कि व्हाई वी नीड टू, देयर वाज अ कंसिडरेशन फॉर द कमिटी दैट एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल ऑफ एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, वी विल बी एक्सेप्टिंग द प्रिंसिपल टू एबॉलिश द जमींदारी सिस्टम, एट द सेम टाइम will also determine the compensation that will be given to the zamindars. It was also important to compensate the zamindar. Second thing is that what would be the principle and the precise formula of the land tenure, क्योंकि जिस समय की ये बात है उस समय लैंड टेन्योर सिस्टम बहुत ही कॉम्प्लेक्स था, 14 तरीके के टेन्योर सिस्टम था। अब हम ऐसा क्या प्रिसाइज फॉर्मूला बनाएंगे, इनके पास टास्क था कि यू नीड टू फॉर्मुलेट द प्रिसाइज फॉर्मूला फॉर द लैंड टेन्योर सिस्टम, और दूसरा साथ साथ और जो रिप्लेस करना जो एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है जमींदारी का, जो 14 डिफरेंट तरीके के लैंड टेन्योर्स हैं, लैंड टेनेंट्स हैं, उनको रिप्लेस करके एक न्यू लैंड स्कीम लेके आना। तीसरा, एक कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन होगा जो नया स्कीम बनेगा या जो नया लैंड टेन्योर सिस्टम होगा उसको वो इफेक्ट में ले आएंगे, ऐसा उनके सामने एक टास्क रखा गया, राइट। और फाइनली उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन लैंड रिफॉर्म बिल जो है उत्तर प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में मूव किया गया, जो कि 10 जनवरी 1951 को पास किया गया लेजिस्लेटिव असेंबली से। उसको एसेंट लेजिस्लेटिव काउंसिल से 1951 में 16 जनवरी को मिला, और जिसको कि प्रेसिडेंट का एसेंट जो है 1951 में दैट रिसीव द एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। अब 1 जुलाई 1952 को दिस all the state of the intermediaries that was vested with the state government। जैसे ही ये कानून पास हुआ 1951 में प्रेसिडेंट का इनको एक्सेंट मिला, 20 जनवरी को रिट पिटीशन फाइल हुआ इस केस में। केस का नाम है उत्तर प्रदेश में एक हाईकोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल हुआ। केस का नाम है सूर्यपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, सूर्यपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। और उन्होंने रिट पिटीशन में क्या उनका दावा था कि ये स्टेट को दे वांटेड दैट रिट कॉलिंग अपॉन द स्टेट टू फॉरबिड दी फ्रॉम गिविंग द इफेक्ट टू द एक्ट, इस एक्ट को इफेक्ट में नहीं लाना है। ये रिट पिटीशन हाई कोर्ट में फाइल हुआ, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट अपने फुल बेंच से इस एक्ट को वैलिडेट किया, बोला अपहोल्ड द वैलिडिटी ऑफ द एक्ट, बोला कि ये एक्ट तो वैलिड है। उसके बाद जो पेटिशनर थे वो सुप्रीम कोर्ट गए ऑन द ग्राउंड दैट कि इस मैटर में दिस मैटर इन्वॉल्व द सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ। दिस मैटर मूव्स टू द सुप्रीम कोर्ट। जब ये अपील पेंडिंग था सुप्रीम कोर्ट में, तभी जो है आर्टिकल 31A में, संविधान के आर्टिकल 31A में एक अमेंडमेंट किया गया, और वो अमेंडमेंट कुछ इस हिसाब से था कि एक्विजिशन ऑफ एनी स्टेट और एनी राइट therein shall not be void on the ground that it will violate the basic structure of the constitution which is mentioned in part 3 of the constitution। ये बताया कि भाई उसी समय 31A में अमेंडमेंट हुआ, बताया कि एक्विजिशन ऑफ एनी स्टेट और एनी राइट वुड नॉट बी void on the ground that it violate the basic structure of the constitution। मतलब the state have all the state can acquire any rights in any state or any other right in the property matter, and that will not be considered to be void because it is violative of the पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये लेजिस्लेशन है, आप इसको कैसे बता सकते हैं कि ये वेलफेयर लेजिस्लेशन है, क्योंकि ऐसा कोई भी लेजिस्लेशन, हमारे संविधान का इंटेंशन क्या है? संविधान का इंटेंशन ये है कि सभी को स्टेटस ऑफ इक्वालिटी मिले, मतलब लार्ज नंबर ऑफ होल्डिंग किसी एक ही बंदे के पास एक्यूमुलेट रहे, ये कभी भी इंटेंशन नहीं था हमारे लेजिस्लेचर का। अगर हम होल्डिंग को डिवाइड करते हैं और एक इक्वालिटी क्रिएट करते हैं कि जो लैंडलॉर्ड है और टेनेंट के बीच में एक इक्वालिटी क्रिएट हो, तो यही तो हमारा intention है। Also we never wanted that the large fraction of the land should be accumulated in the hand of the few people, so land should be equally divided among everyone, and that we need to create a good relationship between the tenant and the landlords, so that is also the intention of the constitution। और साथ ही साथ हमने ये बताया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये एक्ट जो है वैलिड है। अब कई बार स्टूडेंट्स के दिमाग में एक सवाल होता है कि व्हाट वाज द रीजन फॉर द एबॉलिशन, क्यों हमने एबॉलिश किया जमींदारी सिस्टम? टेनेंट्स और लैंडलॉर्ड के बीच में आपस में काम चल ही रहा था, क्या जरूरत थी? सबसे पहली जरूरत जो आपको अपने दिमाग में बैठानी है ये था कि जमींदार क्लास जो था वाज द सोशल बेस्ड बाय द ब्रिटिशर्स टू हेल्प देम मेंटेनिंग देयर रूल। जो जमींदार था एक वो सोशल बेस्ड था by the Britishers to help them to establish their rule, maintain their rule. So British creation had to be abolished.
ब्रिटिशर्स के क्रिएशन को आपको एबॉलिश करना ही करना है। दूसरा, अंडर द जमींदारी सिस्टम द पीजेंट्स वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओनर ऑफ द लैंड, द पीजेंट वर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज एन ओनर ऑफ द लैंड एंड द टेनेंट्स कुड रिजेक्ट the zamindars could reject the tenant at any time. There was no fixity of tenure and there was also not a fixity of rent, right? So now the peasants were therefore not giving what 100% what they have, right? So that was the one reason. The second is that it is a creation of the Britishers. Now the Britishers have gone, their system has also to be abolished. The third very important reason was that the cultivators were only, see, the zamindar were not improving the condition of the soil. They were only after taking the production and taking the land revenue. मतलब जो land से rack renting और दूसरा illegal exactions में लगे थे वो. So their betrayal necessitated their abolition. Right, their betrayal has necessitated their abolition. दूसरा था कि इन ऑर्डर टू इंक्रीज द स्टेट रेवेन्यू वी नीड टू एबॉलिश द जिम्मेदारी। भाई हमें स्टेट के रेवेन्यू को जनरेट करना था, तो ये जरूरी था कि हम एबॉलिश कर पाए जिम्मेदारी सिस्टम को, राइट। ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। जो नया एक्ट आया, एसेंशियल फीचर्स, जो नया एक्ट आया, जो पास किया गया, उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट 1950, इस एक्ट में सबसे पहला जो फीचर था इसका, एबॉलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। मतलब एक्ट जो है फ्रॉम द डेट ऑफ वेस्टिंग, और डेट ऑफ वेस्टिंग क्या था, 1 जुलाई 1952 से ऑल द राइट, इंटरेस्ट एंड द टाइटल्स ऑफ द इंटरमीडियरीज, दैट इज जमींदार, नाउ वेस्टेड इन द स्टेट गवर्नमेंट एंड दे हैव अबॉलिश्ड ऑल द राइट्स ऑफ द इंटरमीडियरीज। दूसरा, पेमेंट ऑफ कंपेंसेशन। इस एक्ट की सबसे खूबसूरत बात थी कि ऑल द जमींदार, बिग और स्मॉल, एवरीबडी इज एंटाइटल्ड टू गेट द कंपेंसेशन। सो क्या कंपेंसेशन का क्या लेवल था, कंपेंसेशन टू बी पेड 8 टाइम्स ऑफ देयर नेट एसेट, उनके अपने एसेट का 8 टाइम्स उनको कंपेंसेशन मिल रहा था। सिर्फ कंपेंसेशन ही नहीं था, रिहैबिलिटेशन ग्रांट भी था, पेमेंट ऑफ द रिहैबिलिटेशन ग्रांट। देयर इज आल्सो द प्रोविजन फॉर द पेमेंट ऑफ द रिहैबिलिटेशन grant. It is payable on the ground ranging from 1 to 20 times of their net income. जो रिहैबिलिटेशन ग्रांट की, भाई जमींदार अब क्या करेंगे, उनको भी तो कुछ काम करना होगा ना, सो उनको रिहैबिलिटेट करने की जरूरत है, तो 1 to 20 times of their net income they are entitled to have the rehabilitation grant. Now the जमींदार जो खुदकश्त थे, एक कंसेप्ट है खुदकश्त का कि जो खुद ही अपने लैंड को, वो भाई अगर कोई जमींदार है वो खुद ही अपने लैंड को कल्टीवेट करता है, और अगर आप खुद अपने लैंड को कल्टीवेट करते हो, क्योंकि ये कंसेप्ट है he who cultivates the land should be the owner of it. अगर आप खुद अपने लैंड को कल्टीवेट करते हो तो कल्टीवेशन राइट मेंटेन था, ऑल पर्सन कंटिन्यू टू रिटेन द पोजीशन ऑफ द लैंड, जिस लैंड को वो खुद कल्टीवेट कर रहे थे। दूसरा, लैंड टेन्योर सिस्टम को हमने सिंप्लीफाई कर दिया। जो 14 तरीके के लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे उसको घटा के जो हमने 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम कर दिया, एक भूमिधर विथ ट्रांसफरेबल राइट, भूमिधर विथ नॉन ट्रांसफरेबल राइट, और तीसरा असामी। चौथा, प्रोहिबिशन ऑफ लेटिंग, हमने लेटिंग, सबलेटिंग सब मना कर दिया। हाउएवर एक्सेप्शन हमने बनाया कि अगर कोई महिला है, कोई माइनर है, कोई इडियट है, कोई लुनेटिक है, सो स्टूडेंट है, पर्सन इन डिटेंशन है, तो कुछ वो लेटिंग कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू सेक्शन 157 ऑफ उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। प्रोहिबिशन ऑफ एक्युमुलेशन ऑफ लैंड, ये बहुत जरूरी था। सेक्शन 154 एक्ट का कहता है कि नो टेन्योर होल्डर विथ हिज और हर स्पाउस, कोई भी टेन्योर होल्डर अपने स्पाउस के साथ, अपने माइनर चिल्ड्रन के साथ कैन अक्वायर लैंड बाय परचेज और गिफ्ट एज अ रिजल्ट ऑफ विच ही एंटाइटल्ड टू बिकम अ लैंड एक्सीडिंग 12.5 एकर्स इन एग्रीगेट। व्हाट डज इट मीन कि कोई भी लैंड टेन्योर होल्डर अपने खुद और अपने स्पाउस के साथ, अपने माइनर चिल्ड्रन के साथ लैंड एक्सीड नहीं कर सकता 12.5 एकड़ से ज्यादा, लेकिन अक्वायर नहीं कर सकता आफ्टर कमिंग ऑफ दिस एक्ट। लेकिन अगर किसी के पास 12.5 एकड़ से ज्यादा जमीन पहले से ही है तो वो रिटेन कर सकता है उस लैंड को, लेकिन दे कैन नॉट हैव एनी अदर लैंड बाय परचेज और गिफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था। दूसरा, एक यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन हमने बनाया, वी क्रिएटेड द यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन थ्रू दिस एक्ट। और लास्ट में स्टैब्लिशमेंट ऑफ द विलेज रिपब्लिक। एक गांव, जो आपको पता ही है कि बिफोर कमिंग टू द ऑपरेशन द गांव, वी हैव ओनली गांव सभा एंड द गांव पंचायत। इस एक्ट के आने के बाद हमने गांव समाज लैंड मैनेजमेंट कमेटी बनाया, और जो पब्लिक यूटिलिटी की जमीन थी, जो आबादी प्लेस था, जो पब्लिक वेल्स था, टैंक्स था, दे ऑल विल बी गवर्न्ड बाय द लैंड मैनेजमेंट कमेटी थ्रू द गांव
गांव सभा क्रिएट किया, हमने लैंड मैनेजमेंट कमेटी किया, स्टैब्लिश किया, जो इन सब चीजों का ध्यान रखेगा। सो बेसिकली जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव था इस एक्ट का वो यही था कि एबॉलिशन ऑफ जमींदारी, हमने क्या किया, लेटिंग और सबलेटिंग को मना किया, एकुमुलेशन को मना कर दिया कि भाई आप एकुमुलेट नहीं कर सकते, यूनिफॉर्म रूल ऑफ सक्सेशन बनाया, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विलेज रिपब्लिक किया। तो ये इस एक्ट की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। और 1 जुलाई 1952 से जितने भी राइट्स थे इंटरमीडिएट्स के, दैट ऑल विल बी वेस्टेड विद द स्टेट गवर्नमेंट। राइट, सो एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आपके आता है कि एक्सप्लेन द ब्रीफ एसेंशियल फीचर्स ऑफ द यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, डिस्कस द प्रोविजन ऑफ द यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट, या क्रिटिकल नोट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ द यूपी जमींदारी एबॉलिशन एंड लैंड रिफॉर्म एक्ट। सो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या था इसका, भाई किस तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ये मैटर गया, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं ये एक्ट वैलिड है। केस का नाम है सूर्यपाल सिंह एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। 1951 में एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। और आपको जो एग्जाम में आपका फोकस रहना, आपको पॉइंट्स में आंसर लिखने, पहले पॉइंट्स में आंसर मतलब हेडिंग डालना है और उसके साथ उसको हेडिंग को एक्सप्लेन करना है। ऐसा अगर आप लिखते हैं अपने एग्जाम में आंसर, इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ रीजन और उसके साथ साथ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, तो देयर इज मोर चांसेस कि आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि 150 नंबर का पेपर होता है आपका लैंड लॉस का और 50 नंबर का आपका पिनल लॉस होता है। 150 में से आपको ये मान के चलिए कि आप आराम से 90 से 100 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। कई बार आप 110 भी स्कोर कर सकते हैं अगर आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ के लिखें तो। सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि क्या है उत्तर प्रदेश जमींदारी एबॉलिशन एक्ट। और आपको ऐसी वीडियोस और बनाऊंगी जिसमें कि आपको भूमिधर के राइट्स को मालूम चले और भी लैंड मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।